As we now move from inspiration to action, our next session, Session 1, will cover nuts and bolts of impactful CSR execution, titled Documentation and Collaborative Strategy for Effective Implementation. This session will address a vital question: how can an organization turn intentions into outcomes? To begin this session, I now invite Ms. Gayatri Subramaniam, Director, Association for Women in Business and Director, International Center for Socially Responsible Business, to lead our first session. Please welcome on the stage, ma'am. Round of applause, please. Before moving forward, I would like to introduce Ms. Gayatri Subramaniam. Ms. Gayatri Subramaniam is a seasoned expert in corporate social responsibility with over 3 decades of experience spanning academia, industry, and government. Her core areas of work include CSR policy development, capacity building, sustainability, and inclusive business practices. She has played pivotal role in shaping India's CSR landscape, contributing to the formulation of CSR legislation under the Ministry of Corporate Affairs and helping establish the National Foundation for Corporate Social Responsibility. She was also involved in developing the National Voluntary Guidelines and Business Responsibility Reporting Framework mandated by SEBI. As the director of the Association for Women in Business, she champions women's participation in business and consults on CSR and sustainability initiatives. Thank you. नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग. मैं गुजराती नहीं बोल सकती लेकिन हिंदी और इंग्लिश ज़रूर बोलूँगी. गुजराती में सिर्फ समझ सकती हूँ, शायद नेक्स्ट टाइम आते आते बोलना भी शुरू कर दूँगी. Thank you so much. Thank you Ahmedabad Management Association for inviting me here today. And it's my pleasure and honor to be here today to discuss something very important, very close to my heart. और इससे पहले जो योगेश जी ने डिस्कस किया था डिटेल में, उनका पैशन था. और उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था कि CSR बहुत बाद में कॉइन इन हुआ था. CSR का जो टर्म है वो बहुत बाद में आया था. इट वॉज कॉइन्ड इन मच लेटर बिफोर ही स्टार्टेड. एंड ही इज़ राइट, बिकॉज CSR has been, though CSR has been a part of our integrity, has been a part of our Vedas, sculpture, culture, religion, but it has never been that actor corporate was missing. Do you all agree with me? It was more of social responsibility, more of individual responsibility, more of family responsibility, and it all started much before the like India got freedom. It all became much, it was there as a part of, philanthropic activities, as a part of charity, as a part of, feel good factor, कि हमारा अब कब भर गया है, अब जो भी बह रहा है उसको हम दूसरों को दे देंगे. अच्छा हमारे मतलब गुड मेक फील, हमें गुड फील करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए. बट जो ये एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म है, जब ये आया इंडिया में, और कॉर्पोरेट वर्ड, can somebody tell me what do you mean by corporate? What is the meaning of company or corporate or आपको क्या लगता है 140 करोड़ से ऊपर की जनसंख्या में हमारे पास कितने कॉर्पोरेट्स हैं इंडिया में? एनी आइडिया? एनी आइडिया? हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम एक नए लेजिस्लेशन की बात कर रहे हैं जो इंडिया में, लाइक इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन मैंडेटेड. No other country there is a law which says that you have to execute corporate social responsibility. So any ideas, any guesses? कितनी companies की बात कर रहे हैं हम? Lots of companies. वो तो एक अच्छा guess है आपका बहुत. 5,000. Anyone else? और किस तरह की companies की बात कर रहे हैं जो आप lots of companies 5,000? बाकी लोग तो guess करते हुए भी डर रहे हैं. एनीथिंग अबव 5? हाँ, मैं नंबर पूछ रही हूँ, कितने नंबर आपको लगता है? इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, 140 प्लस करोड़ जनसंख्या है.
अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको हम एसएमई बोलते हैं या फिर प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, वो ज़्यादा है दैन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. ऑर्गेनाइज सेक्टर को कौन गवर्न करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के नाम से पहले जाना जाता था. और उनका एक एक्ट है विच इज़ कॉल्ड कंपनीज एक्ट 2013. सबने सुना है इसके बारे में? सबने सुना है. नाउ कंपनीज एक्ट पहली बार कब लिखा गया था? 1956. इनके लिए तालियां बजाइए. बिल्कुल 1956, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया आज़ाद होने के बाद 1956 में. उसके बाद दोबारा कब लिखा गया? 2013. आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कंपनीज एक्ट 2013, जिसमें 470 सेक्शंस हैं, जिसमें सारी वो बातें लिखी गई हैं जो एक कंपनी को गवर्न करती है, और how a company should work or how a corporate should work is written in that act. And that act is the Bible of Ministry of Corporate Affairs, through which all these companies are governed. Now, first act was written in 1956, second act came in 2013. That means for the next act to come, it will take another 100 years. So what I'm trying to emphasize here is Companies Act is here to stay. Now, as I said, there are 470 sections, out of which one section, section 135, which was introduced later, much later, because योगेश जी ने बिल्कुल सही बोला था, CSR था ही नहीं, उसको बाद में इंट्रोड्यूस किया गया था. और आपको पता है, इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेटिक कंट्री, the law is written through participative process. Everything evolves through act. कोई बता सकता है कैसे एक एक्ट लिखा जाता है या कैसे एक लॉ बनाया जाता है इंडिया में? पहले लिखा जाता है, फिर उसको पब्लिक डोमेन में डाला जाता है ताकि स्टेक होल्डर्स फीडबैक मिल सके. उसके बाद वो पार्लियामेंट जाता है. पार्लियामेंट में देयर आर 2 हाउसेस, वी ऑल नो, लोकसभा, राज्यसभा. इट गोज टू लोकसभा. वहाँ अगर सारे मंत्रियों को टाइम मिले तो वो पास करते हैं, पारित करते हैं, लड़ने से फुर्सत मिले तो. उसके बाद राज्यसभा जाता है, वहाँ उसको पारित किया जाता है. फिर इट गोज टू द लॉ मिनिस्ट्री फॉर लीगल वेटिंग. देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज असेंट, वो अपना स्वीकृति देते हैं उस पर. और उसके बाद वो एक रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री, जो भी मिनिस्ट्री ने उसको बनाया है, उनके पास आता है, जो वो अपनी वेबसाइट में डालते हैं, जिसको गज़ेट नोटिफिकेशन बोला जाता है. और एक बार वो गज़ेट नोटिफिकेशन हो गया तो वो लॉ ऑफ द लैंड बन जाता है. सो 2013 में एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन आया था, एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ था, एंड दैट वाज mandatory CSR, corporate social responsibility, which was mandated for a certain section of company, not every company. Coming back to my same question, how many companies are we talking about? More than, somebody Googled it just now. Very good. Very good. Good Google. This is the data. So you have more than 25 lakhs, definitely 28 lakhs, but only 18 lakhs 50,932 are the ones which are active. Remember when new Prime Minister of India took over in 2014, he declared many companies as shell companies, many companies which were not, there, many companies which were just existing in paper, many companies which were sick or exiting because of, striking off, many dormant companies. So today, as per data of Ministry of Corporate Affairs, till March 2025, we have around 18 lakhs 50,000 companies. And how many companies do you think fall in the ambit of CSR here? Any guesses? कितनी companies आपको लगता है? 1000? और ये हम किस तरह की कंपनीज की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं फैमिली ओन्ड बिजनेसेस की, जो हमारे इंडिपेंडेंस से पहले थी, जैसे टाटास, बिरलास, डालमियाज एंड अदर्स. We are talking about companies which are public sector undertaking, जो government owned companies हैं. We are talking about companies which are foreign based multinational, that is they originated outside India and became a part of Indian companies. We are talking about companies which are, shareholders are limited or just, outside stakeholders, outside shareholders are there. Those are called private companies. We are talking about Section 8 companies which are made for non-profit only. We are talking about listed companies. What are listed companies? Those which are listed in National Stock Exchange and Bombay Stock Exchange.
वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट ओन्ड पब्लिक एंटरप्राइजेस, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का हाथ ज़्यादा होता है. सो ऑल दीज कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स the governance is done by Companies Act, and the number 18,15,000 is those types of companies I'm talking about. Now, out of which there is a category, एक certain section, अपने एक उसके हिसाब से, टर्नओवर के हिसाब से या नेटवर्थ के हिसाब से या प्रॉफिट के हिसाब से, जिनको CSR करना है. 470 सेक्शंस में से एक सेक्शन जिसमें टोटल CSR compliant companies are around 25,000 only, not even 2% of the existing companies, and so much of hullabaloo, so much of chaos. Everybody talks about CSR and still they are not clear what exactly is CSR. आप में से बहुत सारे मेरे यहाँ पे कॉर्पोरेट मित्र होंगे, बहुत सारे NGO मित्र होंगे, बहुत सारे आपकी क्लैरिटी अभी भी लैक ऑफ क्लैरिटी होगी. क्यों? क्योंकि एक सेक्शन है जो पिछले 10 साल से लाइक डेकेड प्लस ही हुआ है. 2013 में 14 से उनको करना था. सो वी आर इन 25, जस्ट अ डेकेड प्लस, 1 year, 11 years, and still it is catching on. Still there is so much of confusion, still there is so much of chaos. And that is the reason every day there is a conference, every day there is a training program, every day people are trying to learn. But what is the good news? Good news is, though CSR has been there in our DNA, but corporates becoming a part of it, now corporates spending from their hard-earned profit has become a routine, has become a course of strategic action. अब क्या है कि कंपनीज कहती है हम फंस तो गए हैं, अब मूसलों से क्या डरना, सर ओखली में आ गया है, अब हमें अच्छी तरह से उसको करना है. उसमें फिर क्या बात होती है, और आज का जो कॉन्फ्रेंस का थीम है, आइडिया टू कोलैबोरेट, आइडिया टू इम्पैक्ट. सो उस तरह के प्रोजेक्ट्स बनने चाहिए जिसमें आप कोलैबोरेशन कर सके, एक गठबंधन कर सके, जिससे कि इम्पैक्ट जो आपका एक्चुअल रिजल्ट है, जिससे आपने शुरू किया था, मन में रख के शुरू किया था. अब जैसे उन्होंने मैराथन की बात की, 20-25 साल हो गए, एक आइडिया, रिस्क लिया, एक आइडिया था, और उसको आज वो देख रहे हैं कि इतने सारे स्टेक होल्डर्स हो गए, इतने सारे बेनिफिशरीज हो गए, इतनी सारी कंपनीज आगे आ रही हैं. सो माय presentation today is going to tell you about ideas to collaborate, what are the documents, क्योंकि हम यहाँ पे 2 एक्टर्स की बात कर रहे हैं, रादर 3 एक्टर्स की बात कर रहे हैं, जिनका काम करने का नजरिया अपना अपना है. वन इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट एक फैसिलिटेटर है, एक एनेबलर है, एक लेजिस्लेटर है. गवर्नमेंट ने एक्ट पास कर दिया है. और अब क्या है, जब आप 2013 में ये एक्ट शुरू हुआ था, इट वॉज अप्लाई और एक्सप्लेन प्रिंसिपल. आप CSR करिए, नहीं किया तो एक्सप्लेन कर दीजिए. और अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया, CSR नहीं किया, एक्सप्लेन भी नहीं किया, तो आप जेल जाएंगे, क्योंकि इट वॉज अ क्रिमिनल ऑफेंस एट दैट टाइम. In 2014, when the Bayer Act came in, it was a criminal offense. Later on, with the more amendments, with the more, experience, companies started protesting. They said, you cannot send us to jail for not doing good work. So in 2020, Amendment Act आया. अब क्या है कि एक्ट में भी जो भी अमेंडमेंट करना है उसका भी यही प्रोसीजर होता है, लोकसभा, राज्यसभा एंड पूरा. सो अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये तय किया गया, दिस वाज डिसाइडेड दैट नाउ द एक्ट, इफ नॉट फॉलोइंग द एक्ट, नॉट कंप्लाइंग विद द लेजिस्लेशन, इज नॉट गोइंग टू बी अ क्रिमिनल ऑफेंस बट अ सिविल ऑफेंस. क्या किया उसमें? पेनल्टी बढ़ा दी. और बहुत सारे जो लूप होल्स थे शुरू में, मैंने बताया बेयर एक्ट था कि आपको इतना खर्चा करना है, नहीं किया तो आप रीजंस लिख दो. तो कंपनीज ने अपने रीजंस लिख दिए. और फर्स्ट ईयर जब हमने उसकी एनालिसिस की थी, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ द एंटायर इवॉल्वमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट, आई वाज वर्किंग विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सो वी हैड held those records which the companies had submitted with Ministry of Corporate Affairs. जब हमने उसका एनालिसिस किया तो हमने देखा बहुत सारी कंपनीज ने रीजंस लिख दिए. उन रीजंस का कोई सेंस नहीं बनता है. एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मेरी बीवी को CSR पसंद नहीं है तो मैंने नहीं किया CSR. हाँ, I'm telling you, because they were giving all kinds of irrelevant reasons.
and were not spending that money. और कई कंपनीज थी जो अपने हिसाब से CSR कर रही थी एंड दे वर एक्वायरिंग एसेट्स. हॉस्पिटल बना दिया, स्कूल बना दिया. अब 1 साल का CSR हो गया, उसके बाद वो स्कूल की उनकी प्रॉपर्टी, या फिर जो हॉस्पिटल बनाया वो उनकी प्रॉपर्टी. ज़मीन के दाम आपको पता है कैसे बढ़ते हैं. कई ऐसे थे, कई थे वो कहते थे कंपनीज जो कि CSR का मतलब भूखों को खाना खिलाना. तो उस टाइम दिस इज द ओनली एक्ट, अगेन आई एम सेइंग दैट, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स हुए. जो CSR एक्ट 2013 में आया था और जो CSR एक्ट आज 2025 में है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स. एंड टुडे वी स्टैंड एट अ प्लेस वेयर द अमेंडमेंट्स आर वेरी वेरी पावरफुल, very very effective, so that now a company does not have any other way out but to do their CSR in a strategic manner. उसमें एक और चीज़ थी कि कुछ कोषों के नाम दिए थे, प्राइम मिनिस्टर कोष, PM केयर्स, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा मूवमेंट. तो NGOs को क्या लगा, कंपनीज करेगी नहीं, सीधा कोष में डाल देगी. बट कंपनीज रियलाइज्ड दैट कोष में डालने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज इट्स एन ओशन. मैं अभी सुबह ही बता रही थी, इट्स नॉट दैट गवर्नमेंट इज नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन दी सोशल इनिशिएटिव्स. दे आर स्पेंडिंग lakhs and crores of rupees. We can't even count. But does it reach beneficiaries? Is it effective? I don't think so. Because the highest authority of India can stand on a public pedestal and say it is only 5% or 7% that reaches the beneficiaries. We know what kind of system we are talking about. So what happens to this? ये नई चिड़िया कौन सी आ गई? CSR. मुझे फिर से योगेश जी की बात याद आ रही है कि CSR कॉइन जब ये टर्म हुआ था, I was a part of that, revelation. जब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी, जो उस समय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, उन्होंने एक छोटी सी किताब जारी की थी, which was called Voluntary Guidelines on CSR. It was in 2009, CSR mandatory नहीं था, and when that book was released, it was just an intent document जिसमें 8 प्रिंसिपल्स थे कि स्टेक होल्डर्स की रक्षा करो, आप कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करो, ह्यूमन राइट्स को फॉलो करो, विमेन को एनेबल करो, एनवायरनमेंट का ध्यान रखो, क्योंकि तब तक इतना कॉरपोरेट के बहुत सारे मिस हैपनिंग्स हो चुके थे, ट्रेजेडीज हो चुकी थी. भोपाल गैस ट्रेजेडी हम सबको पता है, सत्यम फियास्को हम सबको पता है, जो किसी ना किसी तरह से हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे पैसे को, इकोनॉमिक को, सबको इफेक्ट कर रही थी. So that is the reason why today when we talk about CSR, it is a foolproof mechanism. And companies who fall in that ambit cannot do anything, just they have to put a strategic CSR initiative in place. How they are going to put it, I'll just take you through this presentation which will tell you. These I've told you what are the types of companies we have. इसमें से सबसे ज़्यादा आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो बिजनेस सर्विसेज हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप ऑपरेट कर सकते हैं, बिजनेस सर्विस जैसे होटल्स हैं, खाने का है, मेडिसिन है, ऑल दैट. But rest of them are limited to places. We have CSR, I have told you what exactly it is. It is about taking care of economic, environmental, and social responsibilities of businesses. Now we are talking about business. We are not talking about individual efforts. We are talking about those companies which fall in that ambit. अब companies को बताना था, उन्होंने कहा आप हमारा सेस बढ़ा दो, आप हमें क्यों बोल रहे हो, कौन करेगा ये? और उस टाइम ये कोलैबोरेशन की बात उठी थी. मुझे याद है 2010 में जब डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए ये कंपलसरी हुआ था, जो CPSUs को रखती है, CPSUs का ध्यान देती हैं. That time the term NGO was brought in. It was not that NGOs were not existing. NGOs were there, but NGOs were working out of their passion. They were not talking about corporates. They were not willing to work with corporates because they thought that corporates are only money-making machines. They think about profit only. Rightly so. जब एक establisher एक business establish करता है, एक promoter, वो business के बारे में ही सोचता है. मिल्टन फ्राइडमैन में भी कहा था, business of business is business. तो उस टाइम जब NGOs को लाया गया,
तो NGOs और corporates में there was a huge trust deficit. Do you all agree it still exists? When you go to corporate, they are not so willing to believe you or trust you. So that time it was more, and like Yogeshji said, due diligence was the word. Diligence of financial records, diligence of legal records, that governance was the key word. अब क्या है, NGOs काम करते हैं अपने पैशन के कारण, बिकॉज वो धरती से जुड़े होते हैं, उनको इफेक्ट दिखना होता है. कॉर्पोरेट्स हैं, वो अपने ग्लॉसी रिपोर्ट्स, अपने पैसे, अपने डॉक्यूमेंटेशन पे ध्यान देते हैं. तो आज का टॉपिक आई थिंक बहुत ही सोच समझ के रखा गया है, कोलैबोरेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन. हाउ डू दे गो हैंड इन हैंड? Because collaboration happens only when corporates are convinced, first of all, by legislation, but they have a choice to put it in some of the kosh. And NGOs are convinced that corporates are doing good work. They are willing to take up risk. They are willing to trust them. तो हमने कॉर्पोरेट्स को तो बताया कि क्या क्या फ़ायदे हैं. फ़ायदे हमने बताया कि स्टेक होल्डर रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव रहेगा, ट्रस्ट डेवलप होगा, कम्युनिटी के साथ काम कर सकते हैं आप, और एक ब्रांड इक्विटी बन सकती है आपकी, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं आपके पास, स्टाफ आपके पास रिटेन होगा, जैसे उन्होंने बड़े गर्व से बताया कि हमारा स्टाफ काम करता है. सो वो ऑल दोज वर दी फैसिलिटीज, ऑल दोज वर दी एडवांटेजेस विच वर गिवन टू कॉर्पोरेट्स. NGOs को क्या मिलेगा? फिर हमने NGOs को बताया कि आप स्टेक होल्डर, जो अपने स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, फंडर को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ अर्ली 2000, जब जो फॉरेन से पैसा आता था वो भी कम हो गया, FCRA बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया था, फॉरेन कंपनी से पैसे नहीं आते थे, CSR के कारण सबने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो डोनेशंस थे, वो कम कर दिए थे. तो गवर्नमेंट में उसने क्या क्या काम किया, ये एक, मैं आपके साथ ये प्रेजेंटेशन छोड़ के जाऊंगी जिसमें पूरे गवर्नमेंट के हाउ गवर्नमेंट हैज़ वर्कड विद NGOs इज रिटन. एंड फॉर्चुनेटली एट द कॉस्ट ऑफ बोस्टिंग आई वुड से आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ऑल दीज इनिशिएटिव्स, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सोशल चार्टर से लेकर वॉलंटरी गाइडलाइंस, नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस, DPE में जब ये मैंडेटरी हुआ था, सेबी ने जब ये लिस्टेड कंपनीज के लिए मैंडेटरी किया था, उसके बाद कंपनीज एक्ट आया, फिर सेबी भी अपना साथ साथ काम करती रही है, और आज की तारीख में 1000 से ऊपर लिस्टेड कंपनीज को बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको डिक्लेयर करना है कि आपने क्या किया है. सो आफ्टर दैट ऑफ कोर्स हाई लेवल कमिटीज वर एस्टैब्लिश्ड, नेशनल अवार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड, और बहुत सारे तरीके के अमेंडमेंट्स आए थे. जो अमेंडमेंट्स में मैंने आपको बताया, डीक्रिमिनलाइजेशन हैपेंड, अनस्पेंट मनी, क्योंकि जैसे एक्ट, बेयर एक्ट में था कि आप खर्चा करो, नहीं किया तो लिखो. अब अनस्पेंट मनी का क्या होगा, वो पैसा कहाँ जाएगा, वेदर इट विल गो टू द बिगर प्रॉफिट और व्हाट विल हैपन. सो आज की तारीख में उस पर भी लूप होल है कि आपको अनस्पेंट मनी को इस तरह से ट्रीट करना है. मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट स्लाइड में कि कैसे करना है. सो ये सारी चीज़ें जो आज की तारीख में कंपनीज करना चाहती हैं, इफ़ यू आर एन NGO यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट. ऑल दीज गाइडलाइंस आर अवेलेबल इन दी वेबसाइट, इन दी इंटरनेट. अगर आप एक कॉर्पोरेट हैं तब भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप शायद एक पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, आप एक फॉरेन बेस्ड मल्टीनेशनल हैं, तो आपको सेक्शन 135 के अलावा भी कुछ और फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी. सो यू मस्ट नो ऑल दीज गाइडलाइंस एंड ऑल दीज steps, mandatory steps which government has taken. Now, coming to Companies Act, the 18 December 2012 ko, it was approved at Lok Sabha, then Rajya Sabha, then Gazette notification. These are landmarks because हम लोग wait करते थे इन dates की. इन dates में हमने timings की wait की है, जो कई बार 10 बजे होता था, कई बार 8 बजे होता था, कि कब ये act वो होगा. उसके बाद सेक्शन 135 मैं डिटेल में नहीं लूँगी क्योंकि इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्रेजेंटेशन, बट स्टिल आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट अगर आपकी कंपनी या कोई भी कंपनी का टर्नओवर 500 करोड़ 1000 करोड़ से ऊपर है, नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर है और प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है, तो आपको एक CSR पॉलिसी बनानी है, एक CSR एनुअल एक्शन प्लान बनाना है, एक्टिविटीज़ डिसाइड करनी है, 2% आपका पैसा एलोकेट करना है,
उस पैसे को आपको उस साल या 3 साल के अंदर अंदर खर्च करना है। 3 साल का जो क्लॉज है अभी रिसेंटली आया है उसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट बोला जाता है, जिसमें जिस साल आपने शुरू किया प्लस 3 साल। और क्लॉज ये आया है कि अगर आपने वो पैसा खर्च नहीं किया तो आपको वो पैसा या तो कोष में डालना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं डाला तो पेनल्टी लगेगी विच विल बी डबल द अमाउंट ऑफ अनस्पेंट मनी। सो it emphasizes on the actual creative and strategic interventions कि आप अगर जब तक स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, एनुअल एक्शन नहीं। गॉन आर द डेज जब कंपनीज अपने NGOs को दिसंबर के महीने में या जनवरी के महीने में पैसा देती थी उस साल का खर्च करने के लिए कि भैया यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे दो, हमारा काम खत्म हो गया। अब ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 1 पेज का डिस्क्लोजर फॉर्म था वो अब 11 पेजेस का डिस्क्लोजर फॉर्म है, और कंपनीज अनलेस एंड अंटिल दे डू इट प्रॉपरली दे विल नॉट बी एबल टू fill that form, disclosure of in the form of CSR 2. So CSR एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि प्रोजेक्ट्स कैन बी कोलैबोरेटिव, यू कैन, और उसको प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के फॉर्म पे लेंगे आप। जब आप प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो वाइडर वर्जन होता है, एजुकेशन प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम, उसके अंडर छोटे छोटे कंपोनेंट्स हो सकते हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ प्रोजेक्ट। और ये बहुत क्लियर कर दिया गया है कि उसको इंडिया में ही होना है, एक्सेप्ट स्पोर्ट्स पर्सनल। जो एक नया अमेंडमेंट आया है जिसमें अगर आप स्पोर्ट्स पर्सनल के साथ काम कर रहे हैं जो किसी नेशनल या इंटरनेशनल गेम्स में या स्पोर्ट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग के लिए आप उन्हें बाहर भेज सकते हैं। अदरवाइज ऑल द मनी नीड्स टू बी स्पेंट ओनली इन इंडिया। कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो CSR नहीं हो सकती है। एक तो जो सिर्फ बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट करें कि आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में RO लगा दिया है और बोला है कि ये हमारा CSR है, या पेड़ लगा दिए और वो CSR है, या कुछ एक्टिविटीज़ जो एक वन ऑफ एक्टिविटीज़ अनफॉर्चुनेटली जैसे सिर्फ मैराथन है, अगर इन्होंने मैराथन के साथ साथ कुछ गुड कॉज या कुछ NGOs को रिलेट नहीं किया तो वो CSR नहीं हो सकता है। सो इट हैज़ टू बी अ फुल्ली फ्लेश्ड प्रोजेक्ट जहाँ पे नीड असेसमेंट होना है, मॉनिटरिंग होनी है, इम्पैक्ट असेसमेंट होना है और प्रॉपर खर्चा होना है। दैट इज़ हाउ इट कैन बी अ फुल फ्लेश्ड प्रोजेक्ट। यू कैन नॉट स्पेंड CSR ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ एनी अदर एक्ट। आपने एक कंपनी एस्टैब्लिश की है और उन लोगों को वहाँ से हटाया है, वो R&R के अंडर, रिहेबिलिटेशन एंड रीलोकेशन एक्ट के अंदर आता है, आप उसको CSR नहीं मान सकते हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं। आप कोई भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं खर्च कर सकते कि मैं दवाइयाँ बना रहा हूँ, चलो मैं उसमें रिसर्च करता हूँ तो वो CSR हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज अगर आपके पास, मैं आपको इसको शॉर्ट में बताती हूँ कि या तो अगर आप सोसाइटी हैं अंडर सोसाइटीज़ एक्ट, या आप ट्रस्ट है, या एक सेक्शन 8 कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट। अगर आप इंडिविजुअली काम करना चाहते हैं तो आपके पास 12A ATG सबके पास होना ज़रूरी है और 3 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और अगर आपको किसी गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश किया है या किसी कंपनी ने एस्टैब्लिश किया है तो 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। बट 12A ATG और एक CSR 1 आता है जो कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से आप ले सकते हैं, आपके पास होना ज़रूरी है। एक्टिविटीज़ रूट में खर्च कर सकते हैं आप, प्रोग्राम्स एंड वो कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन टू फंड्स रूट, मैंने आपको बताया कोष हैं कुछ, उस कोष में सीधा डाल सकते हैं, या आप इंक्यूबेटर्स में डाल सकते हैं जो आपके R&D प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे, एक लिस्ट बनी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट में है, जिसमें आप उनको पैसा दे सकते हैं जो आपके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे फॉर वेरियस कॉजेज रिलेटेड टू सोशल इनिशिएटिव। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 1 year + 3 years, दैट इज़ द ओनली टाइम। आप ये नहीं कर सकते कि अब आपने एक पैसा डाला है और वही प्रोजेक्ट बार बार चल रहा है। It could be that maintenance and operation of that project could be a part of annual, for example, you have constructed a school, और उसके अलावा जो अगर आप 1 साल उसको स्कूल को चलाने का प्रोजेक्ट विल बी 1 year project, yearly project, not ongoing project. This I have already told you. Impact assessment has become mandatory now. अगर आपकी कंपनी 1 करोड़ खर्च कर रही है किसी भी प्रोजेक्ट में, या आप 1 करोड़ का हैंडल कर रहे हैं और उस कंपनी को 10 करोड़ CSR में खर्च करना है,
तो आपको इम्पैक्ट असेसमेंट कराना ज़रूरी है बाय अ थर्ड पार्टी, नॉट बाय योरसेल्फ। सो दैट इज, सो आपको लेके चलना है। जब आप इम्पैक्ट असेसमेंट की बात कर रहे हैं तो आपको मन में लेके चलना है कि द प्रोजेक्ट हैज़ टू हैव एन इम्पैक्ट, because that impact assessment is a part of legislation now. So entire process could be, summarized here. जब आप CSR के बारे में बात करते हैं, जो implementation strategy है कि CSR कमिटी बनेगी आपकी, CSR पॉलिसी बनेगी, एनुअल एक्शन प्लान बनेगा, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म किसके साथ आप काम करना चाहते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट्स अपने आप भी कर सकती है। अब कोल इंडिया को 900 करोड़ रुपए खर्च करने हैं तो उन्होंने 400 CSR लोगों को इकट्ठा किया है, अपने डिपार्टमेंट बनाया है, एंड दैट डिपार्टमेंट डज CSR विद और विदाउट द हेल्प ऑफ NGOs. सो कॉर्पोरेट कैन डू डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। ड्यू डिलीजेंस करना ज़रूरी है, फिनेंशियल एंड लीगल गवर्नेंस में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, प्रोजेक्ट अप्रूव बोर्ड लेवल में होना ज़रूरी है, यू नीड टू पुट इन एन एग्रीमेंट विद द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, देन प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, monitoring and evaluation is a part of the legislation. So a committee is responsible for monitoring and evaluation. और इसीलिए अगर बहुत सारे मेरे NGO भाइयों को ये प्रॉब्लम है कि कॉर्पोरेट्स पैसा नहीं देती, या अप्लाई नो रिप्लाई आ रहा है, या कॉर्पोरेट्स हमें, कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि कॉर्पोरेट पैसा नहीं देती है? प्लीज़ रेज योर हैंड। NGO बाकी सबको मिल रहा है पैसा, हाँ, बट हाथ नहीं उठाया उन्होंने। सो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। यू हैव टू कम टू द ओपन मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रेजेंट करना, क्योंकि मार्केट में पैसा है 25,000 करोड़ रुपए एवरी ईयर, और वो कहाँ से आएगा आपके पास? अनलेस एंड अनटिल यू ट्रेन योरसेल्फ, यू प्रिपेयर योरसेल्फ। इट इज़ ऑल अबाउट, मैं हमेशा अक्सर हंसी में कहती हूँ ऑन अ लाइटर नोट, कि अगर महाभारत में अर्जुन के हाथ में गदा दे दी जाती और भीम के हाथ में धनुष कमान दे दिया जाता तो महाभारत जीतते वो लोग? Yes or no? No? How many of you say no? I'm sorry. They will definitely, they would have won. Yes. Done. So like for example, when you are creating a CSR project, it has to have all these things. Do you have this? आपके पास most of the, I have worked very closely with NGOs and I'm very close, they are very close to my heart, because I know, I can feel their pain, I can feel their passion. So when you go and ask them, आप क्या करते हो? जवाब क्या आता है? कुछ भी कर लेंगे। आप हमें कुछ भी बस्ता बांटने को बांटे दीजिए, हम कर लेंगे, हम दवाइयाँ बना लेंगे, बांट देंगे, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ऐसा नहीं चलेगा। Now you have to create your expertise. Those who want to seek CSR funds have to become expert now. So you have to have baseline survey. Baseline survey की बात कर रही हूँ, जब ये इसमें गवर्नमेंट का भी गलती है, कॉर्पोरेट की गलती है। मध्य प्रदेश में मैं खुद गई हूँ ऐसे घरों में जहाँ पे 3-3 टॉयलेट्स हैं। एक गवर्नमेंट ने बनाया है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, एक कॉर्पोरेट ने बनाया है अपने CSR के अंतर्गत, एक PSU ने बनाया बिकॉज उनको एक डिक्टेट मिला था प्राइम मिनिस्टर द्वारा कि 65 लाख टॉयलेट्स बनने चाहिए। उसके बावजूद भी उस घर के लोग बाहर जाके ओपनली डेफिकेट करते हैं। एक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं बर्तन रखने के लिए, एक में चारा रखा हुआ है, एक में कैटल रखा हुआ है। तो ये बेसलाइन सर्वे तो हुआ ही नहीं ना। अब मैं आपको क्वेश्चंस, मेरे को ये प्रेजेंटेशन खत्म करने दीजिए, 10 मिनट आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए दूंगी, बिकॉज टाइम बहुत लिमिटेड है सर। आई विल जस्ट डेफिनेटली कम। सो आई विल जस्ट कम टू दिस स्लाइड विच इज़ हाउ कॉर्पोरेट में एंगेज विद यू। अभी जो हमने बात की थी, अभी आपके पास जो मोटिव मैराथन का कॉन्सेप्ट आया था, दैट वॉज मोर ऑफ good cause associated with business. It was not a CSR project. When you talk about CSR project, you have to have all that baseline survey, implementation strategy, your database, everything, documentation. So corporate can engage you for anything. They can engage you for employee engagement, जो आप 10-10 रुपए जो employees देते हैं, उन्होंने बात की थी वैसे वाला, या employee giving, सुनामी आया है चलो एक दिन की सैलरी दे दी, या cause related marketing,
कि भाई मेरे को ये कपड़े, ये जैसे वाटिका हेयर ऑयल के लिए मेरे को ऐड देना है या इसके बारे में चर्चा करनी है, जिसमें से 1 रुपया जाएगा गरीबों के लिए, लेकिन मेरा मेन कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केटिंग है कि वाटिका तेल बिके, या फिर ग्रांट्स है जो आजकल ख़त्म होते जा रहे हैं, ग्रांट्स मिलता ही नहीं है आजकल कहीं से भी। बिजनेस एडवोकेसी, वही एडवर्टाइजमेंट वाली बात हो जाती है। एथिकल बिजनेस अलायंस की हमारी कंपनी फील करती है एनवायरनमेंट के लिए, सो आप एनवायरनमेंट के ही बारे में बात करेंगे। या फिर इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर, जो CSR की बात आ जाती है, वहाँ पे आप किस तरह का कोलैबोरेशन करेंगे। दिस स्लाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आप जब आप एक CSR का प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो फुली फ्लेश्ड होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स डालने चाहिए। सबसे पहली बात है कम्युनिटी डेवलपमेंट, बिकॉज CSR इज अबाउट कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में आप बात करेंगे गांव वालों की, विच इज़ नॉट ईजी। आप में से बहुत सारे लोग गांव में काम करते होंगे, लोग इतनी जल्दी खुलते नहीं है वहाँ पे, भाषा की प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें। अब मेरे को अहमदाबाद के या गुजरात के किसी गांव में भेज दे, उनको सिर्फ गुजराती आती है, मुझे सिर्फ हिंदी या इंग्लिश आती है, तो वो प्रॉब्लम आएगी। या फिर वो मेरे पे बिलीव ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे अच्छा कब इलेक्शन कब आ रहे हैं, यू नो, ये दे लास्ट दैट। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट में आपको रियल टर्म्स में एम्पावर करना है, चाहे वो विमेन हो। हमने कई प्रोजेक्ट किए थे जहाँ पे विमेन का दूर दूर तक उसमें कोई वो नहीं था, लेकिन हमने गांव की औरतों को बुला के उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, उनको किचन गार्डन दिया, उनको हमने कॉन्सेप्ट्स दिए कि कैसे वो भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स इकोनॉमी। सो उसमें रूरल विलेज ग्रोथ है, हेल्थियर कम्युनिटीज़ हैं, सेहत का ध्यान रखिए, गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स है उसको लिंक कीजिए। लोगों को पता ही नहीं आयुष्मान भारत में एक स्कीम है जिसमें सीनियर सिटीजन्स को पैसे मिलते हैं, या फिर लोगों को पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट फ्री में दवाइयाँ बांटती है। वो आपका काम है टू फाइंड आउट एंड यू नो गिव इट एज एन एडिशनल। जो एक्स्ट्रा देते हैं तो हमेशा वो बिकता है, जहाँ पे आपको एक के साथ एक फ्री मिलता है वहीं पे आप जाते हैं ना सामान खरीदने। So you need to inculcate community development in it, and it is not just enough. Whatever you are doing should affect environment also positively. Whether it is, for example, अगर ये मेरे पास ये वाला, अगर ये चारों कॉन्सेप्ट लेके मैं एक वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम करूँगी, तो उसमें वाटरशेड मैनेजमेंट में सिर्फ मुझे जो नहरें हैं या तालाब है उसी को क्लीन करना है, या वाटर टेबल्स को ही क्लीन करना है। लेकिन अगर उसमें मैंने जितने लोग अफेक्टेड है उनकी फैमिली की औरतों के साथ काम किया, बच्चों के साथ काम किया, या फिर मैंने सॉइल डाइवर्सिटी चेक की, या फिर मैंने उनके वाटर टेबल्स वो देखा, या सॉइल कार्ड बना के दे दिया, या फिर उनमें डिजिटल रेवोल्यूशन डेटाबेस बना दिया, फार्म मैकेनाइजेशन दे दिया, उनको उनकी ट्रेनिंग करा दी, उनके यूथ को बताया कि बिजनेस कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ जो भी वो प्रोड्यूस करते हैं उसके साथ मार्केट लिंकेज भी दे दिया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। आई हैव बीन टू अलीपुर द्वार, एक छोटा सा गांव शहर है कलकत्ता वेस्ट बंगाल में। आलू ट्रक्स वहाँ पे उल्टे पड़े हुए हैं, बिकॉज पीपल कंज्यूम वेरी लिटिल क्वांटिटी, रेस्ट ऑफ द क्वांटिटी दे डू नॉट नो व्हाट टू डू because they don't have any market linkage. You go from Dimapur to Kohima, you'll find pineapples lying there. तो वहाँ जाके हमने उन पाइनएप्पल्स के लिए जैम बनाने की फैक्ट्री बनाई, छोटे से मिल्स। इट डजंट नीड मच ऑफ मनी, ऑल इट नीड्स इज जस्ट अ लिटिल थॉट प्रोसेस एंड अ लिटिल ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोजेक्ट। सो कोलैबोरेशन का मतलब विन विन सिचुएशन क्रिएट करना। कोलैबोरेशन, गॉन आर द डेज की रैबिट और टॉर्टॉइस में रेस लगी तो कौन पहले भागेगा। अब आ गया है कि जितना ज़मीन है उसमें जो है रैबिट टॉर्टॉइस को कंधे में लेके चलेगा, जितना पानी है उसमें टॉर्टॉइस रैबिट को कंधे में लेके चलेगा। दैट इज़ द काइंड ऑफ इंटीग्रेशन विच नीड्स टू बी क्रिएटेड। और जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन की बात है, वहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने ज़रूरी हैं। अगर आप एक NGO हैं, मैं आपके पास ये प्रेजेंटेशन छोड़ के जाऊँगी, कईयों के पास नहीं होते हैं। इवन एड्रेस प्रूफ भी मुझे एक पुड़िया के रूप में मिलता है कई बार, ऐसे मुचड़ के दे देते हैं। और कॉर्पोरेट में आप जाएंगे तो उनके पास फाइल्स होती है, फोल्डर्स होते हैं। इट्स नॉट मच, जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपके पास पॉलिसी पता होनी चाहिए। जब आप किसी भी कॉर्पोरेट से पैसे मांगने जा रहे हैं, आप काम कर रहे हैं एजुकेशन में,
उनकी CSR पॉलिसी में एजुकेशन दूर दूर तक नहीं है। आप अप्लाई नो रिप्लाई कर रहे हैं, रो रहे हैं कि कॉर्पोरेट काम नहीं दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि वो करना ही नहीं चाहता है। सो CSR पॉलिसी, एनुअल एक्शन प्लान, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के साथ रोबस्ट एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है, जो आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, क्योंकि अब कॉरपोरेट्स को बहुत कुछ सहना पड़ता है, प्यूनिटिव मेजर्स हैं, और इट इज़ ऑल्सो नॉन कंप्लायंस इज लीडिंग टू पेनल्टी। नॉट ओनली दैट, इट्स लीडिंग टू देयर बैड नेम। मीडिया में आ जाता है, उनके वेबसाइट में आ जाता है, मिनिस्ट्री के शो कॉज नोटिसेस आ जाते हैं, पेनल्टी आ जाती है। दैट इज नॉट व्हाट कॉर्पोरेट वांट्स। सो ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी देयर फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। जब आप CSR 2 बनाते हैं तब भी आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। आपका नेट प्रॉफिट, ये दिस इज़ फॉर कॉर्पोरेट, फ्रॉम कॉर्पोरेट्स पॉइंट ऑफ व्यू नेट प्रॉफिट कितना है उसके लिए आपको, क्योंकि पिछले महीने एक कॉर्पोरेट ने सुओ मोटो बेसिस पे ROC को लिखा कि हमारे को 19 लाख रुपए खर्च करने थे, हम नहीं खर्च कर पाए और हमने वो एक धर्मार्थ ट्रस्ट को दे दिया, तो अब हमें माफ़ कर दिया जाए, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ROC ने वहाँ जाके जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला वो 19 लाख नहीं थे, 23 लाख थे। तो अब वो गलत इन्फॉर्मेशन देने के चक्कर में उनको 46 लाख रुपए मिनिस्ट्री को देने पड़े। This case study is there in the public domain, you can find out. So, very correct figures are required from the corporate's point of view also. Form MGT, minutes of the CSR committee, paid challan, latest board resolution. 5 minutes. Okay, I'll just take up this analysis of CSR spent. I have been given 5 minutes. So, ये आपके लिए बहुत interesting रहेगा कि पिछले 10 सालों में हुआ क्या है। अब पिछले इंडिया को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? ऑलमोस्ट मोर देन 70 ईयर्स। उसमें क्या कोई मुझे बता सकता है कि गवर्नमेंट ने कितना स्पेंड किया और कहाँ गया वो पैसा? देयर इज़ नो, बिकॉज दोज मनी इज़ नॉट ऑडिटेड, इट इज़ नॉट देयर इन पब्लिक डोमेन, बट दिस मनी इज़ देयर इन ऑडिटेड एंड इन पब्लिक डोमेन। सो हाउ द कंपनीज हैव स्पेंट, मैंने 17 से फिगर्स लिए क्योंकि 14, 15, 16 में कंपनीज को इतना पता नहीं था कि कैसे करना है। तो अगर आप देखेंगे 17, 18 से लेके 23, 24 तक कंपनीज, जो 21,000 कंपनीज थी वो अब 27,188 हो गई है, और पैसा जो 17,000 करोड़ रुपए खर्च करना था आज वो 34,000 करोड़ हो गया है, ऑलमोस्ट 35,000 करोड़। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग मार्केट which is available for you guys in case if you want to, and especially sitting in the Ahmedabad where Gujarat has lot of industry, you can easily, leverage upon these funding. People want local NGOs, people want, like corporates, my experience with corporates, I've been consulting a lot of corporates, they want local NGOs but honest NGOs, those who really work. So you see the money has increased. This is the kind of, and most of the companies have a little amount, so you can't say you cannot handle that money, because 0 to 50 lakhs is the maximum which most of the companies have spent. 1 to 50 lakhs to 1 crore bhi hai, 1 to 10 crores bhi hai, 10 crore to 100 crores bhi hai, 100 to 500 crores bhi hai. Some companies are spending more than 500 crores also. और आप देखेंगे कि इसमें गुजरात चौथे नंबर पे आ रहा है जो मैक्सिमम स्पेंड हुआ है। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा हुआ है, तमिलनाडु, दिल्ली, लाइक गुजरात इज बीइंग फॉलोड बाय तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। रिलायंस इज द मैक्सिमम, एंड रिलायंस का तो बहुत प्रेजेंस है ईयर, तो यू कैन ऑलवेज गेट लेवरेज अपॉन दैट। मैक्सिमम स्पेंडर इज रिलायंस इन इंडिया, followed by TCS, ONGC, HDFC, Infosys, ITC, NTPC, Tata Steel. These are the year-wise spent. Sector जो spend हुआ है, ये सारे sectors हैं जिसमें Schedule 7 describes the sectors. तो आपको, अगर आप इनमें से किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, उसमें आपको एक full fledged project बनाना है। PSU companies, of course, कम है नंबर में, there are only 300 PSUs. versus rest of the private companies, but still you can see 25% जो है वो PSU से आता है पैसा। लिस्टेड कंपनीज ज़्यादा खर्च करती है अनलिस्टेड कंपनीज से। ये सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड है जिससे मैं ख़त्म करना चाहूँगी।
आप देखेंगे ग्रे जो वो है चार्ट है, ग्रे जो पिलर है पाई चार्ट का, सॉरी इसका बार का, ग्रे बार इज रिड्यूसिंग. Gray bar represents zero spent. Companies who were not spending any CSR money. Now it has reduced to 20, in 23-24 it has reduced, while orange bar has increased. Orange is one which represents more than prescribed. Morning we were talking and I said companies are spending more than what they are supposed to spend. So this is a very interesting slide. Exactly as prescribed is also very less. Less than prescribed is also less, while gray and orange plays an important role. And those companies who are not spending wants good project. They are the ones who are, there to wanting good projects. These are the funds, Swachh Bharat Kosh, Clean Ganga Fund. And I'll just finish it up with small case study. I'll just take one more minute, Pachi. One more minute. This very close to my heart, this project, because I've been associated with it. There is a district called Mewat, New district, sorry. वहाँ का Mewat region है, जहाँ पे basically Muslim community है. So girl children are not allowed to go to school. And there was a report of World Bank also कि वहाँ की जो औरतें हैं वो इतनी anemic हैं, but हर साल उनके baby होता है, because like that is what they are made to be. In the sense, each and every woman who does not even cross 30 has more than 10 children. I've seen them, I've met with them, and when you ask them, when was this child born? जब गाँव में मेला लगा था. They are so uneducated. So that was a kind of, situation which was there in Mewat. So the problem was that girl child were not allowed to go. So SRF, a very close friend of mine, Dr. Reddy, has taken this project which was on a PPP model, जहाँ पे government, industry, NGO foundations created some self-sustainable solutions, schools, जिसमें उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया, holistic approach किया. It was not only students. Started with parents, because fathers were totally against sending their children, especially girl children. So father की mobilization हुई, mothers की education हुई, schools बनाए गए, जो government schools से उनको उठा के उनको clear cut वो किया गया, और उनका खुद का जो श्री राम schools का वो base था, database, उसको use किया, उनकी expertise को use किया गया, and they started like developing some very good schools with this holistic transformation. जिसमें सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया कि कैसे एक्सेस है. They were not allowed to go by bus. So schools were brought to their house. Then infrastructure upgradation, enrollment, attendance, retention, quality, school management committee and parental engagement, teachers' participation, leadership and values. So you see because पर्दा culture है वहाँ पे, ये photos देखिए आप. कैसे वहाँ के जो gentry है, वहाँ के लोग कैसे करके teachers orientation. This is the kind of people you'll find. These are only 1 or 2 mothers having so many children. This is the kind of, and they were awarded with National CSR Award by Ministry of Corporate Affairs, where the President of India awarded them. So with that, I finish my presentation. If you have any questions, you may please ask me. Sorry, did I take more? Yeah, please. You can answer from that. I'm sorry, please. Mic. And I have only 4 questions or 5 questions? Hello. I think 2 questions, okay. Perfect. फिर बाद में tea time पे कर सकते हैं. So the question is that, as you mentioned in the initial part of your speech, is that apply but no reply. So I just would like to understand what are those 2, 3, 4 key reasons for which the proposals are never being responded to from the perspective of NGOs. You are not prepared for the exam. No, that's okay. But what are the reasons is what we would like to That's understand what I'm saying. you. You're not prepared for the exam. Give them what they want. Match their expectations. And Which what has are to be, those? which has to have a research.
you need to first find out what exactly they are doing through their CSR policy, which is a part of public domain. Read that CSR policy, find out about their initiatives, try to find any value added service which you can add on to give them an edge over others, and then go prepared. And then go and tell them, buddy, it's not my requirement, it's your requirement. too." Perfect. Thank you so much, ma'am. That answers. Yeah, sir. बस मैम आप लंच टी टाइम पे हाँ, I पार्थ think- जी मेरे खड़े हैं यहाँ पे. Thank you for such an informative presentation, ma'am. It was really useful. I just wanted to know where can we find the list of the companies which are offering CSR Okay. and their policies in fact. There are 2-3 websites which you should keep in mind. One is www.csr.gov.in, gov.in, csr.gov.in, which has a database of all the companies which are, spending on CSR. Then you go to ministry's website also. Then there is bscsamman.com, an initiative of Bombay Stock Exchange, CII and IICA, which has created a marketplace for NGOs and corporates. So NGOs can reflect their projects, can display their projects there, and corporates can read it. There, at least BSc listed companies can read it. Thank you so much, ma'am. જસ્ટ મેમે હાથ ઊંચો કર્યો તો વન લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધ મેડમ. ક્વેશ્ચન, હા, પ્લીઝ કીપ ઇટ ક્વેશ્ચન ઓનલી. Thank you, ma'am. It was great listening to you. It was so relevant. My question is, I was concerned about the impact analysis that has to be done, which is so important. And I was wondering, who chooses the impact team? I mean, impact analysis team. That's one. Yeah. So right now, the government has not prescribed any agency. They have said that it has to be a third-party agency, not the corporate, not the implementing agency, Yeah. but a third party. Yeah. So when a having relevant experience and expertise. Yeah. So when an NGO goes to the corporate and makes a presentation, does the impact part get included in the presentation? Of course. Therefore, what does the NGO? How does the NGO say who is going to do it, or You don't have to. Who is going? Acha. If your work should speak for itself. yeah? But there is Stephen no Covey's- team which goes later on and then No, does no, any let- impact So analysis. let them do it, because your work is going to speak. So whosoever does it, Yeah, because this is one thing we've been asked. there is no prescription. Every time we go to a corporate, they say, okay, what are you going to do? How are you going to do the impact So analysis? for that I have answer. I'll say that begin with end in mind, Huh. which Stephen Covey also said. You Yeah. just need to be, your project has to have end-to-end management, Yeah. so that you are ready and confident that you get anybody, President of India, to do impact assessment. Whatever I'm promising, I'm going to deliver. Correct. Just one more thing. Sometimes, because we work in education, we do a program called the Turning Point. It's not that as soon as we complete the project, the impact is seen, because it's education. It will take a couple of years for the effects on the students to be seen, right? So in those cases, we are struggling. How do we prove that our work is effective? It Yes. takes time. You're So right. This is one. The behavioral change always takes time. Huh. But in this case, the government has prescribed that in case if you have spent 1 crore rupee on a project, Yeah. and your CSR outlay is 10 crores or more, Huh. in that case you can take 365 days, and that is the time prescribed. Oh, okay. After 365 days, you need to create an impact. So when you are doing a project, you should have impact of at least 365 days in your project. Okay. In Yeah, country. that's so nice. Thank you so much. Thank you. થેન્ક યુ સો મચ. મયુરભાઈ આપણી સાથે છે, જેમણે કોન્ફરન્સમાં ઇનિશિયલ જે કંઈક પ્રોસેસ થઈ એમાં ઘણી મદદ કરી છે, ઉદ્ગમ ટ્રસ્ટ સાથે સંકળાયેલા છે. જસ્ટ આઈ રિક્વેસ્ટ હિમ ટુ ફેલિસિટેટ મેમ, ગાયત્રી મેમ. સો આપણે આ સેશન કન્ક્લુડ કરીએ છીએ અહીંયા. થેન્ક યુ મયુરભાઈ. એક ફોટો લઈ.
ચા અને રિફ્રેશમેન્ટની વ્યવસ્થા અદાણી પેવેલિયનમાં થઈ ગઈ છે. તમે રિફ્રેશમેન્ટ લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ સેશનના સ્પીકર આવી ગયા છે, જેમાં આપણે કમ્યુનિકેશન સ્ટ્રેટેજીની વાત કરીશું. એમાં 2 સ્ટ્રેટેજી જે ગવર્મેન્ટનું કમ્યુનિકેશન સ્ટ્રેટેજી છે એમાંથી લેસન્સ આપણે લઈશું, અને કોર્પોરેટની જે સ્ટ્રેટેજી હોય છે એના વિશે પણ આપણે જાણીશું. આપણે 15 મિનિટમાં ફરી અહીંયા ભેગા થઈએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ.